السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان حافظ عثمان قادری ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں سنی اسلامک بیان پر نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی ہماری ویڈیو میں جو شخصیت موجود ہے جن کو حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آئیے عید کے حوالے سے ان کا ایک نایاب خطاب سنتے ہیں اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قوموں اور مسلمانوں کے درمیان خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور غم منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی، اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے۔ لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں کہ نبوی عید کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانا کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں، اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو، تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے، جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی، جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں، سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور حجامت بھی کرواتے ہیں، تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا، اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو
अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे, इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नई लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह। और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुजम्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उस पे हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े, लिबास उसको रोक ले, लिबास तुम्हारे वजूद की हिफाजत करे। लेकिन अब तुमने चूंकि अपने पूरे वजूद को नंगा कर दिया, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो, तो लोगों की नजरें तुम पर जमेगी और नजरें बद लगेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते, अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया। किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाहियत पर मुनहसिर होता है, या तो जादू असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वो जादू करने वाला पावरफुल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो उसका किया हुआ जादू असर नहीं करेगा। लेकिन नजर बद का हाल यह है, अगर टिकटिकी बांधे हुए किसी को गौर से देख लिया, ना सुभान अल्लाह का ना माशा अल्लाह का, ना निगाहों में अकीदत है, तो फिर वो नजर बद उस पर असर कर जाएगी और उस पर बीमारियां भी हो सकती है, फिर वो पता नहीं कब्र तक भी ले जा सकती है। तो बताएं, मगरबी तहजीब तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने पर तुली हुई है, और आप हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरा लिबास पहनने का हुक्म दिया, पूरे लिबास की तरफ आओ। ईद को तमाशा मत बनाओ, ईद को गैरों के त्योहार के मुशाबे मत बनाओ। अगर सर के बाल कटाओ तो इस्लाम के मुताबिक कटाओ, ऐसे नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि बुख्ती ऊंटों की तरह जो है वो बाल कटाए जाएंगे और उन लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम होगी। आजकल के लड़के, बल्कि जहां पर औरतें और बच्चे मुसलमानों के सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के जवान सिर्फ कटिंग बनाने के लिए 500-500 और 1000 रुपया दे रहे हैं।
जब बताए सिर्फ बाल कटाने का इतना जो कौम देगी, फिर वो कौम तरक्की कैसे करेगी। आज हम सीरिया, यमन, इराक, बैतुल मुकद्दस का रोना रोते हैं। बैतुल मुकद्दस तो हमारे हर मुसलमान के लिए अकीदत का मरकज है, लेकिन रमजानुल मुबारक में बैतुल मुकद्दस की तरावी टीवी पे नश्र हो रही थी। देखने वालों ने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना कि बैतुल मुकद्दस की, मस्जिद अक्सा की, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान दुआ कर रहा है, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान बेचैन और बेकरार होना भी चाहिए, हमारा किबले अव्वल है, लेकिन जब मस्जिद अक्सा की तरावी नश्र हो रही थी टीवी पर, तो देखा गया कि इमाम के पीछे जितने खड़े हैं 95% लोग हैं, न उनके चेहरे पे दाढ़ी है, न उनके सरों पे टोपियां हैं। हमें उनसे हमदर्दी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनके हाथों में पत्थर है, हम उनके हाथों के पत्थर देखकर मुतासिर हैं, दुआ गो भी हैं कि वो पत्थरों से लड़ रहे हैं, बंदूकों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, हथियारों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, लेकिन उनको फतह नुसरत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उनके हाथों में पत्थर तो है, मगर दामन शरीयत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जिन दिन उनके हाथों में शरीयत का दामन आ जाएगा, खुदा उनके अंदर इतनी कुव्वत पैदा कर देगा कि बातिल कुव्वतें उनके कदमों में सरनिगू होने पे मजबूर हो जाएगी। जो टोपी ना पहन सके, इनकलाब पत्थरों से थोड़ी आता है। इनकलाब तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करने से आता। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आगाह होना चाहिए, अगर आप भी और हम भी दीन के करीब ना आए तो अल्लाह न करे, हजार बार न करे कि वो दिन हम पर ना आ जाए। जो उनको आए ना, उससे बदतरीन दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आ सकते हैं अगर हम दीन के करीब ना आए। यही रविश रही ईद के बाद जिना के अड्डों पे जाने का प्लान, ईद के बाद सिनेमा घरों को आबाद करने का प्लान, ईद के बाद अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने का प्लान, ईद गैर मुस्लिमों की तरह, काफिरों की तरह मनाने का अंदाज, फजूल खर्ची, अय्याशी, जुए, ईद की छुट्टियों के अंदर ये सारी गंदगी करने का प्लान अगर यही रहा तो याद रखना, मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए दो बातें अर्ज करता हूं। ईद पर खर्च करने से पहले कहां खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। और अल्लाह को जवाब देना कोई आसान काम नहीं है।